अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने 10वीं जमात के नतायज जारी कर दिए। 92.7% तलबा ने कामयाबी हासिल की। लड़कों पर लड़कियों की सबकत बरकरार। दोनों शहरों में मुस्लिम पर्सनला की ईमा पर बत्ती गुल एहतजाज कामयाब। मजलिस अरकान असम्बली ने मुतल्लिका हलकों में की निगरानी। मजलिस अरकान असम्बली मुतल्लिका हलकों में जारी अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। विशाखापट्टनम के अप्पा स्वामी मंदिर में दीवार मुनहदिम। 8 भक्त बशमूल 5 खवातीन फौत होने की तौसीक, दीगर कई जख्मी। वज़ीर आज़म मोदी का 2 मई को अमरावती का दौरा। कई तरक्याती कामों का होगा इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रविंद्र भारती में अप्रैल में मुनक़िदा SSC इम्तिहान के नतायज जारी करते हुए बताया कि कामयाब होने वाले तलबा का तनासुब मजमूई तौर पर 92.78% रहा, जबकि हमेशा की तरह इस मरतबा भी लड़कियों ने लड़कों पर सबकत हासिल की है। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 4,661 स्कूल्स का नतीजा 7% रहा, जबकि 2 स्कूल का नतीजा 0 रहा। रियासत भर में रेजिडेंशियल स्कूल्स के नतायज खानगी स्कूल से बेहतर रहे। रेजिडेंशियल स्कूल्स के तलबा 98% कामयाब रहे, जिसमें माइनॉरिटी स्कूल्स के नतायज 96% रहे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, ई नरसिम्हा रेड्डी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन भी मौजूद थे। सेक्रेटरी सीनियर ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ యోగితారాణి గారు, విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఈవి నరసింహారెడ్డి గారు వేదికపై ఉన్నారు. అదిగో 10వ తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు. మీ తప్పట్లు తెలంగాణ మొత్తంలో ఉండే పిల్లలకి, మన చెల్లెలకి, తమ్ముళ్ళకి, వాళ్ళ అమ్మలకి, నాన్నలకి, కుటుంబాలన్నిటికీ వినపడాలి. और एक सार जोर से प्यार से విద్యాశాఖలోని ప్రతి ఒక్కరూ, ఉపాధ్యాయులు, పాఠశాల యాజమాన్యాలు, అలాగే మీడియా, తల్లిదండ్రులు, సమాజంలోని అన్ని వర్గాలు, పోలీసు విభాగం, కలెక్టర్లు ఇతోధికంగా సహకరించడం వల్ల ఎంతో ప్రశాంతంగా, ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్ష ప్రశాంతంగా రాశారు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 10వ తరగతి పరీక్షా ఫలితాలను అందించడం, 4,96,000 మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షల్లో పాల్గొని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ముఖ్యంగా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు ప్రైవేట్ పాఠశాలల కంటే మెరుగైన ఫలితాలను సాధించడము ఈ ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరుకు గీటురాయి. మనస్ఫూర్తిగా సిబ్బందిని, విద్యార్థులను నేను అభినందిస్తున్నా. మా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన నాటి నుంచి ఈ దేశ భవిష్యత్తు తరగతి గదుల్లోనే ఉంది. ఈ దేశంలో సమూలమైన మార్పు రావాలి అంటే ప్రతి వాడికి నాణ్యమైన విద్యను అందించాలి అనే ఆలోచన లక్ష్యంతోని, బసవన్న స్ఫూర్తితోని మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. మీకు అందరికీ తెలుసు. కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు 150 రోజులు, 4,000 కిలోమీటర్లు, మండు టెండల్లో, మంచు కొండల్లో మన నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు పాదయాత్ర చేస్తున్న సందర్భంలో ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆ రోజంతా వారు నడిచి ప్రజలలో మమేకమై ప్రజలు తెలియజెప్పిన అంశాలను వారు విని, ప్రతిరోజు సాయంత్రం వారు ఒక 15-20 నిమిషాలు ప్రజలతో మాట్లాడేవాడు. ప్రతిరోజు ఆ ప్రసంగాన్ని దాదాపుగా 150 రోజులు నిశితంగా గమనించిన.
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रविंद्र भारती में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से कांग्रेस हुकूमत पर की जाने वाली तनक़ीदों का जवाब देते हुए बताया कि कांग्रेस ने अंदरून एक साल आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा कर दिया है, लेकिन केसीआर को इसका इल्म नहीं है क्योंकि वो फार्म हाउस तक महदूद होकर रह गए हैं और असम्बली तक आना गवारा नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ख़वातीन, किसान, नौजवान और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला ने हुकूमत की जानिब से शुरू करदा स्कीमात की तफसीलात पेश की। నేను ఈరోజు ఆ పెద్ద ఆయనను ఒక మాట అడగదలుచుకున్నా. ఎక్కడైనా ఎవరైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ప్రభుత్వం నుంచి జీత భత్యాలు తీసుకొని దాదాపుగా 16 నెలల నుంచి ఇంట్లో నుంచి కాలు కదపకుండా జీత భత్యాలతో సహా అన్ని వసతులను మీరు అనుభవిస్తున్నారు కదా, ఇది ఏ చట్టంలో ఉందని నేను అడుగుతున్నా. ఏ చట్టంలో ఉంది ప్రభుత్వం నుంచి జీత భత్యాలు తీసుకున్న వాళ్ళు మేము విధులను నిర్వర్తించము? బసవేశ్వరుడే చెప్పిండు కదా, కష్టపడాలి, కష్టమే ఫలితాలను ఇస్తుంది, మనిషి అనేవాడు ప్రజల కోసం శ్రమించాలి అని. మరి మీరెందుకు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా హోదా తీసుకున్నారు? ఇప్పటి వరకు 65 లక్షల రూపాయల జీతం తీసుకున్నారు, బంగ్లా తీసుకున్నారు, కారు తీసుకున్నారు, వసతులు తీసుకున్నారు. పోలీసుల పహారా మీకు కల్పించిన ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా, మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా అన్ని వసతులను అనుభవించకుండా, ప్రతిపక్ష నాయకుడు పాత్ర పోషించకుండా మీరు ఫామ్ హౌస్లో ఎందుకు పడుకుంటున్నారని 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు అడుగుతున్నారు. సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీకు లేదా? ఆయన అంటే నేను రాను అసెంబ్లీలకు, మా పిల్లల్ని పంపించిన అంటారు. నేను ఆయన్ని అడుగుతున్నా, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि बीआरएस ने अपने 10 साला दौर इक़्तिदार में आवाम को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अपने अराकीन ख़ानदान की तरक्की और फलाह व बहबूद की है, जबकि कांग्रेस इक़्तिदार हासिल करने के फौरी बाद ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत के अलावा आरोग्य श्री स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सहूलत भी फराहम की है। इसके अलावा अंदरून 3 माह तमाम जमातों को रूबे में लाया गया, जबकि नौजवानों को कारोबार करने के लिए राजीव युवा विकास स्कीम के तहत 6000 करोड़ रुपए के खर्चात फराहम कर रही है और वज़ीर आला सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। शायद साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ये सब नहीं देखा। ఏమాత్రం ప్రేమ ఉన్నా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాల్ని అభినందించాల్సింది పోయి అన్ని విఫలమైపోయిందని మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను చెప్తా ఉన్నాను, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బలహీన వర్గాలందరూ గమనించాలి. ఆనాడు 1970 దశకంలో పివి నరసింహరావు గారు ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు సమాజ పరివర్తన కోసం భూ సంస్కరణలు తీసుకొని వస్తే ఆ భూ సంస్కరణను వ్యతిరేకించడానికి ధైర్యం లేనటువంటి కొద్దిమంది దొరలు జయాంధ్ర ఉద్యమాన్ని తీసుకొచ్చి భూ సంస్కరణని అమలు కాకుండా అడ్డుపడినటువంటి చరిత్రని మనం చూశాం. జయాంధ్ర ఉద్యమం తీసుకొచ్చి భూ సంస్కరణలు అమలు కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసి చివరికి వాటిని స్లో అయ్యేటట్టుగా చేసినటువంటి ఒక దుర్మార్గపు ఆలోచనల్ని ఆ రోజు చూశాం. అంతకంటే గొప్ప కార్యక్రమం ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో తీసుకున్నటువంటి క్యాస్ట్ సెన్సస్, అంతకంటే గొప్ప సామాజిక మార్పుకి ఈ రాష్ట్రంలో తీసుకొచ్చినటువంటి रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू और टी नागेश्वर राव ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाने के इक़दाम किए जाएं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से धान की खरीदी के मराकज़ की तफसीलात हासिल करने के अलावा गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों के नुकसानात की तफसीलात से भी वाकिफ़ियत हासिल की और कलेक्टर को हिदायत दी गई कि वो किसानों की हर तरह से मदद करें।
साबिक वज़ीर BRS क़ायद जी निरंजन रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर किसानों से धान की खरीदी के इक़दाम करें, क्योंकि रियासत के किसान गैर मौसमी बारिश के बाद धान के ख़राब होने को लेकर हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी के लिए कोई इक़दाम ना करने के बाद खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि BRS हुकूमत ने अपने दौर इख्तियार में हर देहात में धान की खरीदी के मराकज़ कायम किए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ईमा पर वक्फ कानून 2025 के खिलाफ चारशंबा 30 अप्रैल को 9 बजे शब बत्ती गुल एहतजाज मुनज़्ज़म करने की आवाम से अपील की गई थी, जिसका ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल देखा गया। इस सिलसिले के तहत शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ हलकों बहादुरपुरा, मलकपेट, चारमीनार, नामपल्ली, चनानगुट्टा, कारवान और दीगर हलकों में मजलिसी अराकीन असम्बली की निगरानी में बत्ती गुल एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और इस एक्ट के ख़िलाफ़ अपनी बरहमी और नाराज़गी का इजहार किया गया। अवाम ने रज़ाकाराना तौर पर इस मुहिम में हिस्सा लिया। तुम्हारे खाजा भाई का एरिया पूरा खत्म हो गया, वो पूरा उनका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ईमा पर वक्फ कानून 2025 के खिलाफ चारशंबा 30 अप्रैल को 9 बजे शब बत्ती गुल एहतजाज मुनज़्ज़म करने की आवाम से अपील की गई थी, जिसकी शहर हैदराबाद में मुकम्मल तौर पर तामील की गई। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली बहादुरपुरे में मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की निगरानी में बत्ती गुल एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और उस एक्ट के ख़िलाफ़ अपनी बरहमी और नाराज़गी का इजहार किया गया। अवाम ने रज़ाकाराना तौर पर इस मुहिम में हिस्सा लिया। मोहम्मद मुबीन और मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स ने एहतजाज की निगरानी की, जबकि उन्होंने मीडिया को तफसील भी बताई। आज बतारीख 30 अप्रैल बरोज़े चारशंबा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जो बत्ती गुल का प्रोग्राम था, जिसमें 9 बजे से 9:15 तक के तमाम इलाके की लाइट अपनी अपनी तौर पर रज़ाकाराना तौर पर बंद करने की अपील की गई थी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर आज हम हल्का असम्बली बहादुरपुरे के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स, सुदूर मोतमदीन मजलिस के वर्कर्स ने आवाम से राबिता किया और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने भी इसके अंदर हिस्सा लिया कि बड़ी पैमाने पर मैं समझता हूँ कि 90% से ज़ायद आवाम ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और रज़ाकाराना तौर पर अपने अपने घरों की लाइटों को बंद किया। मैं इस मौके के ऊपर हमारे मजलिस के कॉरपोरेटर्स का, सुदूर मोतमदीन का और आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया था कि हम इसमें एहतजाज में हिस्सा लेना है, तो हम हुकूमत हिंद को ये बताना चाहते हैं कि जो वक्फ तरमीमी बिल 2025 को पार्लियामेंट और राज्यसभा के अंदर पास किया गया है, उसको मनसूखी तक जो भी प्रोग्राम हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ऐलान किया जाएगा, हम तमाम उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मिराज ने हल्के में मंजूरा शादी मुबारक के 268 चेक्स जुमला मालियती 2,38,88,000 रुपये की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
अमीना बेगम प्रोग्राम नंबर 129 कमरुद्दीन शफीउद्दीन प्रोग्राम नंबर 133 हैदरुद्दीन प्रोग्राम नंबर 95 मोहम्मद प्रोग्राम नंबर 78 याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी चार मीनार मंडल के शादी मुबारक स्कीम के जुमला 268 चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। 268 चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं, जिसका अमाउंट हो रहा है 2,68,31,088 रुपये। 2,68,31,088 ये चेक आज डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं शाहजहां फंक्शन हॉल के अंदर। जो एरिया कवर हुआ है याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी का वो अमान नगर ए, अमान नगर बी, याकुतपुरा, SRT कॉलोनी, तालाब कट्टा, भवानी नगर, जहांगीर नगर, इमामबाड़ा, ये तमाम एरिया के 268 चेक तकसीम किए गए हैं। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास क़ियादत के अंदर ये चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। मेरे साथ में हमारे मुगलपुरा कारपोरेटर नसरीन मैडम, नुमाइंदा कारपोरेटर खुरमागुड़ा शफाहत साहब, चार मीनार तहसीलदार मैडम और डिप्टी तहसीलदार और दीगर टीम के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम आज के प्रोग्राम में मौजूद थे। ख़ास तौर से तालाब चिंचलम के तमाम ज़िम्मेदारों के साथ साथ सदर मोतमदीन पूरे के पूरे मौजूद थे। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप तमाम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले को 14 साल का अरसा हो चुका है। 30 अप्रैल 2011 ही को यह हमला हुआ था, जिसके कई महीनों बाद वो रूबे सेहत हुए। अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहतियाबी के बाद इस योम को हर साल पाबंदी के साथ मजलिसी कायदीन अपने रब के हुजूर में शुक्र बजा लाते हैं और कई फलाही काम भी अंजाम दिए जाते हैं। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर शालीबंडा मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर की जानिब से हर साल 30 अप्रैल को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फलों की तकसीम अमल में लाई जाती है। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर शालीबंडा मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और सरगर्म मजलिसी कारकुनों ने दवाखाने उस्मानिया पहुँचकर मरीज़ों और उनके तीमारदारों में फलों की तकसीम अमल में लाई। तेलंगाना के आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। मंगल और चाशमे की दरमियानी शब दूसरे काफिले की रवानगी अमल में आई। 257 आज़मीन को तलबिया की गूंज में रवाना किया गया। मौलाना शाह जमालुर रहमान मुफ्ताही ने आज़मीन की रवानगी के मौके पर दुआ की। रियासती हज कमेटी के सदर नशीन सैयद अफजल बियाबानी, वक्फ बोर्ड के सदर नशीन अजमतुल्लाह हुसैनी के अलावा दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक वन निअमत लक वल मुल्क لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. महकमे बल्दी नज़्म नस्क़ के चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से IAS ओहदेदार इलमबर्ती ने चारशबे को अपना जायजा हासिल कर लिया। वाज़ेह है कि इलमबर्ती अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इससे पहले आंध्रा कांग्रेस की लीडर YS शर्मिला को विजयवाड़ा में उनकी ख़यामगाह के पास गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 मई को आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाले हैं और जब अवामी हक़ के लिए एहतजाज किया जा रहा है, YS शर्मिला को गिरफ्तार किया गया। నన్ను పోనివ్వకపోతే నేను ఇక్కడే రోడ్ మీద కూర్చొని నిరాహార దీక్ష చేస్తాను. మీకు ఎండలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసు, మంచినీళ్ళు కూడా ముట్టుకోను. Am I clear? Okay. So నాకేమన్నా అయితే you are responsible. Please be aware. No, I am not going inside. Why will I go inside? This is my constitutional right. You think I don't have the right to go to my office? మీరెవరండి చెప్పడానికి? No. You are abusing me. You don't have the right. నా మీద చేసే హక్కు కూడా మీకు లేదు. చేయండి. ఫస్ట్ చేయండి. నా మీద చేతులేసే హక్కు మీకు లేదు. చేయండి. Move. I can't breathe. Move. Give me space. I can't breathe. You're suffocating me. Move. నా మీద చేసే హక్కు మీకు లేదు. చంద్రబాబు గారు, this is not right. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక మహిళ మీద, అది కూడా ఒక పార్టీ చీఫ్ మీద ఇంత అన్యాయం చేస్తున్నారంటే మీరు అసలు మేడం ఆఫీస్ కి వర్క్ వెళ్తాను మేడం అక్కడి నుంచి లెట్ మీ గో మీరు కోఆపరేట్ చేస్తారు. ఓకే, లెట్ మీ గో టు మై ఆఫీస్. మీరు ఆఫీస్ కి వెళ్తారు. లెట్ మీ గో టు మై ఆఫీస్. ఆఫీస్ కి ఓన్లీ ఆఫీస్ కి లెట్ మీ గో టు మై ఆఫీస్.
Will you cooperate chesi office work veltanu? I have always cooperated with law and order. You will not find an instance where I did not. Okay, madam. जो office work है Leave this. Move. आंध्रा कांग्रेस की सदर शर्मिला ने सीमाचल में हुई अमवात पर अफसोस का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए वाईएस शर्मिला ने कहा कि उन्हें अवाम से मिलने से रोका जा रहा है। तेलुगु देशम और बीजेपी मिलकर रियासत के अवाम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आज जब वो अवाम से मिलना चाहती थी तो उन्हें रोक दिया गया। Why have you house arrested someone, some party who wants to do good to the people of Andhra Pradesh? While you and your allied party, BJP, are doing gross injustice to the people of Andhra Pradesh, be it in regard to special status, be it in regard to Polavaram, be it in regard to Amaravati capital, not in one issue have you done any justice. And today, because we want to fight for the people, you have house arrested the Congress chief in the state of Andhra Pradesh. Why? Why are you scared? It has been only 2 days since the Congress party in Andhra Pradesh has formed a committee called the Amaravati Capital Committee. The Congress party has only formed this committee with a group of 6-7 people. बावनवां उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयद शाह मोहम्मद वली चिश्ती क़ादरी वाक़ बाबा नगर नाचारम बसद एहतराम व क़ीदत मनाया गया। शेख अहमद क़ादरी फ़खरुल्लाह शाह सूफ़ी मुतवल्ली ने मरासिम उर्स की निगरानी की। गुस्ल शरीफ, संदल शरीफ और महफिल चिरागा मुनक़्क़िद की गई। एडवाइज़र दरगाह कमेटी शेख वसीम के मुताबिक इस उर्स में मुरीदीन, मोतक़दीन और वाबस्तगान की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि मुतवल्ली ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात भी बताईं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ज़िले के समाचिलम में मशहूर अप्पा स्वामी मंदिर में चारशंबे की सुबह दीवार के गिरने के नतीजे में 8 भक्त हलाक और कई दीगर ज़ख्मी हो गए। महलूकीन में 5 ख़वातीन भी शामिल हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अहदेदार फौरी तौर पर वहां पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। मलबा हटाकर ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब सुबह तकरीबन 3 बजे 300 रुपये के टिकट काउंटर के करीब एक सीमेंट की दीवार मुनहदिम हो गई। मंदिर में चंदन वत्सु त्यौहार के पेश नज़र ज़बरदस्त हुजूम था। सालाना त्यौहार के मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे और क़तारें तवील थी। आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला वी अनिता ने जाए हादसे का फौरी दौरा किया और इमदादी कामों की निगरानी की। अंदाज़े हिंद मुशायरा और कवि सम्मेलन का अहतमाम 15 जून को भारतीय विद्या भवन बशीरबाग में किया जाएगा, जिसके दौरान अवार्ड फंक्शन भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। डॉक्टर शुजात अली प्रेसिडेंट AEH, मोहम्मद अल कुरैशी प्रेसिडेंट OTA, इरफान अजीज़ ने 15 जून को मुनक़्क़िद की जाने वाले इस सक़ाफ़ती प्रोग्राम के बारे में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस इवेंट के दौरान तेलंगाना तहज़ीब आदाब अवार्ड्स सरकर्दा शख्सियतों में पेश किए जाएंगे। हम तकरीबन 15 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं हैदराबाद गॉट टैलेंट, जिसमें जो है छोटे छोटे स्कूल के बच्चों से जो है हम लेके आके उनको जो है इंग्लिश में जो है काफ़ी प्रोग्राम्स कराए। अब जो है हमारा जो प्रोग्राम है कि जो उर्दू में भी जो है इस हैदराबाद गॉट टैलेंट प्रोग्राम में करेंगे। जो एक बात तो बिल्कुल मुसल्लिमा है कि इस वक्त हिंदुस्तान में 2 ही ज़बानों का चलन है नेशनल लेवल पर, वो है उर्दूयाइज्ड हिंदी या हिंदीयाइज्ड उर्दू।
ये दो ज़बानें मिलकर के गैर मामूली धूम मचा रही हैं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई हिस्सा, ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे उर्दू के मुशायरे नहीं हो रहे हैं। तो हैदराबाद में भी एक अदब की एक आंधी आ रही है, हर तरफ से जो है मुसलसल कोई ना कोई मुशायरा हो रहा है और लोग उसमें जो शामिल हो रहे हैं। लेकिन एक बात जो इंतहाई अफसोसनाक है वो ये है कि नौजवान ना उर्दू का शऊर है ना हिंदी का शऊर है। नौजवान हिंदी और उर्दू सीख नहीं रहे हैं और अगर पढ़ते भी हैं स्कूल में तो सिर्फ मार्क्स स्कोर करने के लिए पढ़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नौजवानों में उर्दू से मोहब्बत पैदा हो, उर्दू और हिंदी से उनका इश्क हो, ताकि वो अच्छे फिल्म के राइटर बन सकें, फिल्मी गानों के जो है गीत लिख सकें। तो इसीलिए नौजवानों को जो है हम सर्च कर रहे हैं पूरे तेलंगाना में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। लतीफ़ साहब जो है टेम्ब्रिज में भी, जो टेम्ब्रिज एक बहुत बड़ा इदारा है वो गवर्नमेंट का, और उर्दू मीडियम वहाँ, उर्दू सेकेंड लैंग्वेज वहाँ पर है, तो वहाँ से भी हम कई बच्चों को बहुत ही అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఇర్ఫాన్ అజీజ్ అండి. వన్ ఆఫ్ ద టాప్ బేరర్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్కి అందాజ్ ప్రోగ్రామ్ జూన్ 15 కి భారత్ భవన్ ఉన్నది ముషాయరా అండ్ కవి సమ్మేళనం. మేము ఇంపార్టెంట్ గెస్ట్ పిలిచిన బట్టి ఆనరబుల్ గవర్నర్ ఆఫ్ తెలంగాణ, స్పీకర్ గారు గణపతి ప్రసాద్ గారు, ఇంకా ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ చైర్మన్స్ అందరికీ మనం చేసుకోండి. ఇది హైదరాబాద్ ఫర్ టాలెంట్స్ మీద ఇది టాలెంట్ హంట్ చేస్తున్నామండి. దీనికి మన ముషాయరా మీద కవి స్టూడెంట్స్కి దానికి వాళ్ళకు అవార్డు ఇస్తున్నామండి. ఒక కల్చర్ డిఫరెన్సెస్ కాకుండా అందరు కలిసి మంచి ఉండాలని ఈ ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నామండి. ఎంట్రీలు ఎన్ని వచ్చాయి సార్? ఇది ఎంట్రీ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ అండి. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने 10वीं जमात के नतायज जारी कर दिए। 92.7% तलबा ने कामयाबी हासिल की। लड़कों पर लड़कियों की सबकत बरकरार। मंजीस इराकी ने असम्बली मुतालिका हलकों में जारी अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। विशाखापट्टनम के अप्पा स्वामी मंदिर में दीवार मुनहदिम, 8 भक्त बशमूल 5 खवातीन फौत होने की तौसीक, दीगर कई जख्मी। वज़ीर आज़म मोदी का 2 मई को अमरावती का दौरा, कई तरक्याती कामों का होगा इफ्तिताह। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।